ગાંધીનગર શહેરમાં ટાઇફોઇડનો કહેર ફાટી નીકળ્યો છે અને અત્યાર સુધી 200થી વધુ કેસ નોંધાયા છે। માનવ અધિકાર પંચે સરકારને નોટિસ ફટકારી એક પખવાડિયાની અંદર જવાબ આપવા માટે જણાવ્યું છે અને વહીવટી લાપરવાહી માટે અધિકારીઓની સામે પગલાં લેવાની હિચક બતાવી છે। ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સેક્ટર 24, 26, 28 અને આદિવાડા વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની લાઇનના લીકેજ શોધવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે અને ત્યાર સુધીમાં 45 લીકેજ પૂરા કરવામાં આવે છે, જ્યારે આજે વધુ 3 લીકેજ મળીને સમારકામ કરવામાં આવ્યા। મ્યુનિસિપલ કમિશનર તથા ટીમ દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેવામાં આવી અને આરોગ્ય તપાસને મજબૂત કરાઈ છે। પાણીના 608 ટેસ્ટ કરાયા છે, જ્યારે કુલ 2977 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે। પાણીપુરી અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થ વેચતા વેપારીઓ ઉપર પણ કાર્યવાહી થઈ રહી છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ અને દર્દીઓને યોગ્ય સારવાર મળવાની સુનિશ્ચિતતા આપવામાં આવી। કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાનો પણ સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈને દર્દીઓની સ્થિતિ જાણ્યા અને સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા। સોમવારના દાડેથી થયો એડમિટ। ઓકે, અને કેવા પ્રકારની ફરિયાદ? પેટમાં તકલીફો થતી? પેટમાં તકલીફ છે, તાવ આવે અને થોડું માથું દુખાય અને વોમિટિંગ જેવી, ઝાડા વોમિટિંગ। અહીંયા આવવાથી કેવું છે? અભિયાલ સારું હોય અહીંયા આવવાથી। બીજી જગ્યાએ 4 જગ્યાએથી દવાખાનામાંથી લઈને આવ્યા દવા, ત્યાં ફરક નહોતો પડતો, અહીંયા આવ્યા પછી ફરક પડી ગયો। અમે અહીંયા ટ્રાફિકમાં બહુ ઝાડા ઉલટી થઈ ગયા હતા, પછી અમે 4 દવાખાના પ્રાઇવેટમાં ગયા, ફાયદો ન થયો એટલે પછી પતિકા આવ્યા સિવિલમાં ઇમરજન્સીમાં। પછી ઇમરજન્સીમાં અમને એડમિટ કરી લીધા। એટલે અત્યારે સોમવારે અમે 2 વાગે આવ્યા, અત્યારે બહુ સારું છે મારા છોકરાને। અહીંયા સિવિલ આવ્યા પછી અમને બહુ શાંતિ, બહુ રાહત મળી અને બધી જાતની બહુ સારી સગવડ આપે છે સિવિલમાં। અહીંયા ડોક્ટરે શું કીધું, શું બીમારી છે? ડોક્ટરે કીધું છે કે ઝાડા ઉલટી થયા છે અચાનક, અમને તો ટાઇફોઇડની તકલીફ છે અંદર રિપોર્ટમાં આવ્યું। રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરની અંદર આવેલા આદિવાડા ગામમાં રહેતા રાજુભાઈ કનોજિયાની દીકરીએ શંકાસ્પદ ટાઇફોઇડના કારણે જીવ ગુમાવ્યો છે। જોકે તંત્ર દ્વારા સત્તાવાર એની જાહેરાત કરવામાં નથી આવી, પરંતુ આજે આપણી સાથે જે દીકરી ગુમાવી ચૂક્યા છે તેના પિતા રાજુભાઈ કનોજિયા છે। આપણે તેમની સાથે સીધી જ વાત કરીશું કે તેમની દીકરીને કયા પ્રકારની બીમારી થઈ અને તેઓએ સારવાર દરમિયાન ક્યાં લઈ ગયા અને એમને શું શું પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો તે વાત કરીશું। राजू भाई, आप आदिवाड़ा में रहते हो? हाँ, आदिवाड़ा में रहता हूँ। गांधीनगर में टाइफाइड के वजह से कई लोगों बीमार हुए हैं। शंकास्पद मौत आपकी बेटी का हुआ है। हाँ, जो कि वो तंत्र या सरकार उसे सत्तावार बोल नहीं रही कि टाइफाइड की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन टाइफाइड के बुखार से हुई। आप क्या बोलते हो इसके बारे में? काजल को कब बीमार हुई, उसको उसकी क्या फरियाद थी और आप उसे सारवार के लिए कहाँ ले गए? मैं सारवार के लिए 29 में ले गया। पहले प्राइवेट में दवा करवाया तो नहीं कंट्रोल में आया, तो हमने सरकारी अस्पताल में 29 में ले गया। उसको 2 बार ट्राई करवाया बुखार के लिए, तो नहीं बुखार उतरा, तो हमने उसको बोला कि डॉक्टर को भाई रिपोर्ट मेरे को चाहिए। रिपोर्ट निकलवाया, रिपोर्ट निकलवा के तो डॉक्टर ने बोला टाइफाइड का बुखार है, तो बोले कि बच्चों के डॉक्टर के पास सिविल में जाओ। तो हमने दोनों बच्चों को एडमिट कर दिया। दोनों बच्चों को एडमिट करने का मतलब है कि अकेला आदमी हम क्या क्या करेंगे, नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे। कब आप उसको सिविल में कब ले गए थे? शुक्रवार को ले गया था। लड़की मेरी रविवार को रात को 12 बजे दम तोड़ दी थी। डॉक्टरों ने सोए थे, कुछ उसने किया नहीं मेरे बच्ची के लिए। वो सो करके पगार लेते हैं। नहीं, आपकी बच्ची को जब सिविल ले गए, हाँ, तो उसकी क्या रिपोर्ट करवाए? क्या ब्लड रिपोर्ट करवाया था क्या? और अगर और कुछ रिपोर्ट करवाए थे, आपने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे कि बच्ची को कौन सी बीमारी है? टाइफाइड की बुखार थी। हमने वहाँ का जो रिपोर्ट था ना उनको दिया। उसने जिस दिन मेरी लड़की सीरियस हो गई थी, उसने मेरे दोनों बच्चों का रिपोर्ट ले लिया। दोनों बच्चों को मैंने एडमिट किया था, तो बोले दोनों बच्चे का रिपोर्ट लाओ 29 वाला, तो हमने दे दिया। उसके बाद वो लोग रिपोर्ट दिए नहीं मेरे को। उसके बाद मेरे को रिपोर्ट पे रिपोर्ट दौड़ाते रहे, तुम्हारी बच्ची सीरियस है, तुम खून लाओ, ये रिपोर्ट करवाना है, वो रिपोर्ट करवाते करवाते 12 बजे वो लड़की दम तोड़ चुकी थी। ये डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है। डॉक्टर सब सो गए थे। डॉक्टर ये बैठ के पगार लेते हैं।
अच्छा, उसको टाइफाइड हुआ है ऐसा किसी डॉक्टर ने बोला था? ऐसे ने डॉक्टर ने नहीं बोला था, उसको पर्दे में रख दिए थे। डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसको टाइफाइड का बुखार का सबको पता चल गया था कि इसको बच्चे को टाइफाइड की बुखार है, लेकिन किसी ने उसका इलाज नहीं किया। क्या 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 आपने डॉक्टर से बोला तो क्या बोलते थे वो? तो डॉक्टर ने बोला कि हमारा इलाज चालू है। तो हमने बोला कि भाई ऐसे इलाज नहीं चालू होगा, एक लड़की मेरी ऑफ हो चुकी है, मैं दूसरा लड़के को नहीं खोना चाहता हूँ, मेरे को छुट्टी चाहिए। लड़की को जैसे वहाँ मर गई रविवार को ना, तो हमने उसको लेके आया शमशान से छुट्टी उट्टी लेके, लड़के का खाटला वो लोग चेंज कर चुके थे डॉक्टर लोग ने। तो हमने बोला कि भाई मेरे को छुट्टी चाहिए। 4 दिन के बाद हमने छुट्टी आपका लड़का भी वहां पर सारा हाँ, ले रहा है? दोनों साथ में थे। एक नीचे लड़की ऊपर थी दूसरे मंजिल में आईसीयू में थी, लड़का पहला मंजिल पे था। तो हमने बोला भाई मैं अकेला इंसान हूँ, मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, एक ही रूम में एडजस्ट कर दोगे तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इन लोग जानबूझ के दूसरे बिल्डिंग में डाल दिए, 6वें महल पे डाल दिए, लास्ट वाली जो बिल्डिंग बनी है उसमें डाल दिए थे लड़के को। फिर भी वो लड़के को मैंने पर्दे में रखा कि तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, दूसरे अस्पताल में है, फिर भी उसको पर्दे में रखा हूँ। अभी तक पता नहीं चला है कि वो उसकी बहन मर चुकी है। अच्छा, अभी भी आपके लड़कों को उसको पता नहीं है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही? नहीं रह गई है। उसको मैंने बोला हूँ कि दूसरे अस्पताल में मैंने एडमिट किया हूँ, दूसरे अस्पताल में है, मैंने उसको एडमिट किया हूँ, ऐसा उसको लड़के को समझौता दे रहा हूँ। अच्छा, आपकी बच्ची जो काजल अब इस दुनिया में नहीं रही, हाँ। उसका डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिख के दिया है वो कुछ पता है आपको? हाँ है ना, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि टाइफाइड का बुखार नहीं है, लेकिन टाइफाइड का बुखार ही था। ये लोग डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी लड़की गुजर चुकी है। एक नहीं लड़की मरे हैं, यहाँ 10 लड़के को मार चुके हैं ये डॉक्टर लोग। ये सोने का पगार लेते हैं, बैठ के पगार ले रहे हैं, ये लोग कोई इलाज नहीं किए। अच्छा, आपके घर में दूषित पानी आ रहा था? कुछ नहीं आ रहा था, पानी में हम कुछ नहीं गलत कर सकते हैं, पानी तो पवित्र है, एक गंगा की तरह। वो नहीं, वो जो गटर के साथ मिला हुआ पानी था नहीं, वो गलत बात है, डॉक्टरों की गलत है ये रिपोर्ट है। ये लड़की पानी से नहीं मरी है, इन लोगों की लापरवाही से मरी है, मैं ये बोलता हूँ। मेरे आंखों के सामने वहां 10 लड़के मर चुके हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाया, मैंने आवाज उठाया हूँ। જી, તો આ હતા આદિવાડામાં રહેતા જે દીકરી ગુજરી ગઈ છે તેના પિતા રાજુભાઈ કનોજિયા. તેમનો સીધો આક્ષેપ છે કે ડોક્ટરોની લાપરવાહીના લાપરવાહીના કારણે કારણે એ લોકો સો એમની ગए थे. દીકરીનું મોત થયું છે. કેમેરામેન દીક્ષિત સાથે દિલીપ પ્રજાપતિ, પ્રદેશ 24 ગુજરાતી, ગાંધીનગર.